मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम देखने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वी विल डिस्कस द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ओके, ग्रुप 17 एलिमेंट्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ओके, so first of all we will discuss the general properties. Okay, in these general properties, first of all, atomic radii. Very simple. When we go down in the group, each time one cell is increased, that's why the size of the halogens increases. Okay, this group is also known as halogens. Okay, so atomic radii increases when we go down the group. Okay, after this, ionization enthalpy. Okay, so first of all we should know what is ionization enthalpy. So ionization enthalpy is the energy required to remove the electron from the outermost orbit. Okay, so for this we will have to consider its electronic configuration. So we see the electronic configuration of the halogens. That is, for fluorine, it is the outermost electronic configuration. पहले इसका देख लेते पूरा 1s2, 2s2, 2p5. Okay. So this second orbit is the outermost orbit for fluorine. Okay. So in general way we can say the outer electronic configuration will be ns2 and p5. Only one electron is sought for the completion of the p subcell. Okay, that's why the ionization enthalpy of this group is very high. Okay, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज सेल इज इंक्रीजिंग. क्लोरीन की अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें तो इट विल बी 3s2 3p5, and for bromine it is 4s2 4p5, iodine 5s2 5p5, and for astatine this will be 6s2 6p5. So in this way we can see in the outer electronic configuration the each time one cell is increasing, so size is increasing, and simply the ionization enthalpy is very high. Why? Because only one electron is sought in the completion of the p orbitals. Okay, but as the size is increasing, so in general way in periodic table when we go down the group the ionization enthalpy decreases. Why? Because the size is increasing, so the nuclear force of attraction upon the outermost orbit electron is decreasing. Okay, now we see another point, that is electronegativity. So how this electronegativity varies when we go down the group. So electronegativity means the tendency to attract the shared pair of electron towards itself. So their sizes are very small, their nuclear force of attraction upon the outermost orbit is very high. That's why their electronegativity in the periods, okay, for the particular period, जैसे इस फ्लोरीन की बात करें, ये सेकंड पीरियड की बात है, ठीक है। तो इन सेकंड पीरियड
the electronegativity of fluorine is the highest, then for chlorine, then bromine and so on. Okay. तो इन जनरल में जैसे कि पीरियोडिक टेबल का रूल है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। सारी चीजें लगभग साइज से रिलेटेड है, ठीक है ना। जब जो एटॉमिक रेडियाई है उसके इंक्रीज होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होने लगेगी। तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये भी डिक्रीज होगी, एंड एटॉमिक रेडियाई है ये इंक्रीज होगी। ओके, नाउ वन मोर अनदर गुड फैक्टर, गुड property, that is electron gain enthalpy. Okay, so our fourth point is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से एनायन बनने की कैपेसिटी। जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जब देखें कि ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट की बात करें अगर, ठीक है ना, कंप्लीशन ऑफ द p ऑर्बिटल, तो दैट्स व्हाई दे शो मोर इज फॉर द नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस पीरियड में सबसे हाईएस्ट होती है। लेकिन जैसे इस ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो पीरियोडिक टेबल का जनरल रूल है, ठीक है ना, तो वो जनरल रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, देन फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन, ठीक है, कम होती जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी कंडीशन क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। जबकि क्या होनी चाहिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। बाकी इधर तो रूल फॉलो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयोडीन से ज्यादा है, एंड सो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। तो व्हाट इज द रीजन? For this, we can give the reason, the extraordinary smaller size of the fluorine. जो फ्लोरीन का जो साइज है that is very small, and अगर फ्लोरीन एनायन बनेगा तो क्या होगा, जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन है that will be added in 2p orbitals, and since the 2p orbital is much crowded, so there is much inter-electronic repulsion. So that's why fluorine does not show more ease for the next coming electron. कहने का मतलब ये है, जो 2p ऑर्बिटल्स है वो ज्यादा क्राउडेड होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है, इसीलिए फ्लोरीन पे जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन, जिससे कि ये एनायन बने, ठीक है ना, उस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम शो करता है, दैट्स व्हाई इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस। ऐसा क्लोरीन में नहीं है, क्योंकि क्लोरीन में जो ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा दैट विल बी एडेड इन 3p, ठीक है ना। और 3p में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 3p इज नॉट सो मच क्राउडेड जस्ट लाइक द 2p ऑर्बिटल, सो देयर इज नो मच मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन in 3p orbital, so the electron gain enthalpy of chlorine is higher than that of chlorine. Okay, now we will discuss some general properties.
जनरल प्रॉपर्टीज लाइक देयर कलर, देयर स्टेट्स एटसेट्रा। तो यहाँ हम थोड़ा सा बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन की, ठीक है ना। दीज आर फाउंड इन द गैसियस फॉर्म। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। ब्रोमीन जो है दिस इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। एंड आयोडीन इज इन सॉलिड स्टेट। वन मोर गुड थिंग that is about their colors. Okay, they absorb the light in the visible region, that's why they show different colors. Okay, for example, the fluorine absorbs the light in a yellow region, that's why its color is yellow. The color of chlorine is greenish yellow, हरे और पीले रंग की, ठीक है ना, ग्रीनिश येलो। एंड ब्रोमीन इट्स कलर इज रेड एंड दैट ऑफ आयोडीन इज वायलेट, ठीक है। तो दीज आर द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17। ओके, अब हम इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी से पहले थोड़ा सा हम जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज अदर देन द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17। जो फ्लोरीन है वो ग्रुप 17 के और एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। उसका थोड़ा सा रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें जो मेन चीज है कि क्यों फ्लोरीन बाकी के सारे जो एलिमेंट है ग्रुप 17 के उनसे डिफरेंस हो करता है, तो उसका मेन रीजन है इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉलर साइज। जो इसका साइज है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल। ओके, इस स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा कि, और दूसरी बात, इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है दैट इज सेकंड ऑर्बिट, तो इट डज नॉट कंसिस्ट डी ऑर्बिटस, वेकेंट डी ऑर्बिटस, वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेट इज नॉट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड है और सेकंड ऑर्बिट में 2D उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होगा कि जो इसकी कोवेलेंसी है, कोवेलेंसी देखिए, अगर मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो वो इस तरीके से होगा, ये 2s है एंड दिस इज 2p। ओके, सो 1 2 इधर एंड दिस वन, ठीक है, 2s2 2p5, ठीक। नाउ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट इन द कंप्लीशन ऑफ 2p ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर इफ इट वांट टू एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी, कोवेलेंसी अभी यहाँ पे क्योंकि इट हैज ओनली वन हाफ फील्ड ऑर्बिटल, सो इट कैन फॉर्म वन बॉन्ड ओनली। ओके, अगर ये अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज करना चाहता है तो इसमें एक्साइटेशन होना जरूरी है। ओके, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p टू 2d, ठीक है ना, 2s से 2d, बट 2d इज नॉट देयर, तो दैट्स व्हाई इट डज नॉट शो द कोवेलेंसी मोर देन 1। एंड दूसरी बात, ड्यू टू द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट नेवर शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन -1। ये हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। दूसरी बात, जो FF सिंगल बॉन्ड है, F सिंगल बॉन्ड, और बाकी के जो बॉन्ड्स हैं Cl Cl, Br Br एंड I, ठीक है, यहां पर
ड्यू टू स्मॉलर साइज, ठीक है ना, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो बनने वाला सिंगल बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन एफ सिंगल बॉन्ड सी एल सिंगल बॉन्ड से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है। उसका कारण है कि एफ सिंगल बॉन्ड जो बनता है वो एफ के स्मॉलर साइज होने की वजह से जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्मॉलर साइज होने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ऑर्बिटल्स हैं उनके ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो कम हो जाता है, जिससे कि एफ जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम रह जाती है। तो दैट्स व्हाई एफ सिंगल बॉन्ड इज वीकर इन कंपेयर टू सी एल सिंगल बॉन्ड। ओके, नाउ another thing, which is related with the oxidation state of chlorine, bromine and iodine. Okay, chlorine, bromine and iodine. Okay, so this is the higher oxidation state when they are combined with oxygen and fluorine, because the oxygen and fluorine are very highly electronegative atoms, so they have capability to bring this one and this one in their higher oxidation state. Okay, in oxides में ये +4 and +6 तक क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लोरीन के अगर ये उसमें देखें तो उसका कारण क्या है, जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई है कि ये आराम से दे कैन ब्रिंग दीज एटम्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, नाउ वी विल सी सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ the group 17 elements. First of all, we will discuss the properties of their hydrides. Okay, so hydrides means compound with hydrogen. Okay, so fluorine when combined with hydrogen forms HF, hydrofluoric acid, HCl, HBr and HI. Okay, यहाँ पर जो मेन थिंग है वो हम डिस्कस कर सकते हैं व्हेन वी गो डाउन इन द ग्रुप। ओके, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जो सेंट्रल एटम है इसका साइज इंक्रीज होता है, और ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स विद सराउंडिंग एटम्स, दिस एक्सटेंट डिक्रीजेज। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी इन बिटवीन HF, HCl, HBr, HI, ये डिक्रीज होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसका साइज इंक्रीज होने की वजह से ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम हो जाता है, और ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होने की वजह से बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। नाउ वी विल use this bond enthalpy to define their acidic character, okay, their reducing character, etc. and their stability also. तो stability के बारे में तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, because the bond enthalpy is decreasing, so obviously their stability will also decrease. तो stability पर क्या होगा, stability will decrease. Is it clear? यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है, which one is the strongest acid out of HF, HCl, HBr and HI? इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? तो दिस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है ना, हम जानते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी ये डिक्रीज हो रही है।
तो बॉन्ड एंथैल्पी के डिक्रीज होने से क्या होगा, HI की जो बॉन्ड एंथैल्पी है दिस इज द लीस्ट. ओके, so that's why the liberation of hydrogen is easiest from HI in compared to HF. Means HI से हाइड्रोजन मतलब H प्लस ये मान सकते हैं, H प्लस का लिबरेशन दिस इज द easiest. Okay, so that's why the acidic nature of HI is highest. So HI, HBr, HCl and HF. The bond between H and F, it is the strongest. So the breaking of H and F bond, it becomes difficult. So the liberation of H plus is also difficult. So the acidic character also decreases. Okay. In the similar way, we can explain their reducing character. तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में क्या होगा, अगेन हम बॉन्ड एंथैल्पी को कंसीडर करेंगे. बॉन्ड एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग इन गोइंग डाउन द ग्रुप. अब बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो व्हाट विल हैपन, जो HI है इससे हाइड्रोजन का रिलीज ये सबसे इजी होगा, ठीक है ना. और हाइड्रोजन का रिलीज जब होगा तो डेफिनेटली दिस हाइड्रोजन विल बी एक्सेप्टेड बाय सम अदर कंपाउंड. किसी दूसरे कंपाउंड के द्वारा इसको एक्सेप्ट करना होगा. एंड जो कंपाउंड इसको एक्सेप्ट करेगा, कंपाउंड या एलिमेंट है जो भी इसको एक्सेप्ट करेगा, डेफिनेटली दैट विल बी रिड्यूस्ड. ओके, सो जितनी जल्दी इधर से H प्लस रिलीज होगा उतनी ही जल्दी किसी को ये एक्सेप्ट करना होगा. दैट्स वाई द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ HI इज द ग्रेटेस्ट. ओके, तो कहने का मतलब ये है रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा. एसिडिक कैरेक्टर अगर बात करें, एसिडिक कैरेक्टर ये ऊपर से नीचे जाने पे ये भी इंक्रीज होगा. ठीक है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी. ठीक है, तो ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं. अब वो सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज है. अब हम इनके ऑक्साइड्स की बात करेंगे. ठीक है ना. ऑक्साइड्स में सबसे पहले हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन देखिए ऑक्साइड्स, क्योंकि फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पीरियोडिक टेबल में है फ्लोरीन के बाद है. मींस सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की. दैट्स वाई जो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑक्साइड्स के नाम से कहते हैं. लेकिन जब फ्लोरीन से इसको कंबाइन किया जा रहा है तो चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है तो उन कंपाउंड्स को जो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में है उनको फ्लोराइड्स बोलते हैं, ना कि ऑक्साइड्स. ओके, और फ्लोरीन दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाती है, सॉरी दो टाइप के फ्लोराइड्स बनाती है. मतलब ऑक्सीजन की जो फ्लोराइड्स है वो O2F2 एंड OF2, ये दो फ्लोराइड्स हैं जो ऑक्सीजन बनाती है. इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. अदरवाइज ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इतनी हाई है कि ये -2 ही वैलेंसी शो करता है. इन मैक्सिमम केसेस में हार्डली ये अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज करता है. ठीक है, यहां पर O2F2 और OF2 इन दोनों में अगर हम देखें तो O2F2 की स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. ठीक है ना. इसकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से, O2F2 की स्टेबिलिटी कम होने की वजह से जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल है, क्या स्पेंट
न्यूक्लियर फ्यूल। इस स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में क्या होता है, जो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम की इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है ना। इस प्लूटोनियम की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए वी विल यूज दिस O2F2, ओके। एंड हाउ इट इज रिमूव, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद दिस स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में जब हम इसको ऐड करते हैं तो प्लूटोनियम फॉर्म्स PuF6 and this can be removed easily from the spent nuclear fuel. So we can say the O2F2 can be used for the removal of the plutonium from the spent nuclear fuel. Okay. After this, we move toward the oxides of the chlorine. Chlorine forms different type of ऑक्साइड। सो द वैलेंसी +1 to +7 तक वैलेंसी शो करता है, ठीक है। जैसे कंपाउंड्स Cl2O, ठीक है। यहाँ ऑक्साइड्स बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, ठीक है। Cl2O, ClO2, ओके, ClO3, इस तरीके से Cl2O7। तो so many oxides are prepared by क्लोरीन, ओके। यहां भी हम देखें, ये सारे के सारे हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, उतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एकोमोडेशन ऑफ सो मेनी ऑक्सीजन एटम सराउंडिंग टू द स्मॉल क्लोरीन एटम, इट बिकम डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट। सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जाते जाते इनकी अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कम होने लगती है। तो दे आर हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, क्योंकि जब ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन निकलने का मतलब है सामने वाले को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करना है, तो डेफिनेटली दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। यहां पर हम इसकी बात करें, ClO2, इसका यूज जो है, जो पेपर पल्प है, पेपर पल्प इंडस्ट्री है, उसमें पेपर पल्प के ब्लीचिंग के लिए काम में लिया जाता है। किसके काम में लिया जाता है? फॉर द ब्लीचिंग ऑफ द पेपर पल्प, एंड दिस इज आल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द वाटर ट्रीटमेंट। क्योंकि ये ऐसे मान सकते हैं बैक्टीरिया को किल करते हैं। किल करने के लिए जो वाटर है, वाटर में किसी भी टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनको किल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ द ब्रोमीन, ओके। ब्रोमीन जो ऑक्साइड्स बनाता है जनरली Br2O, BrO2 एंड BrO3। और जो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हैं, दे आर द लीस्ट स्टेबल। यहां पर ये चीज है, वाई दे आर लीस्ट स्टेबल, एंड फॉर दिस द रीजन इज ड्यू टू द मिडिल रो एनोमली, मिडिल रो एनोमैली। इस रीजन की वजह से the oxides of the bromine are least stable, okay। यहां पर आगे चलते हैं। इसमें आयोडीन के ऑक्साइड्स में, जो आयोडीन है वो कौन से ऑक्साइड शो करता है? I2O3, I2O4, I2O5 एटसेट्रा, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड्स आयोडीन बनाता है। और यहां पर भी
जो आयोडीन का ये कंपाउंड है I2O5, दिस इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके काम में आता है? आयोडीन पेंटॉक्साइड, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द reactions of the group 17 elements with metals. Okay, जो मेटल्स के साथ में कंपाउंड्स बनते हैं, कोई सा भी पर्टिकुलर मेटल लिया, ठीक है, सपोज मैग्नीशियम ले लेते हैं हम। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ में बनाएगा MgF2, देन MgCl2, then MgBr2, then MgI2। ओके, ये जो कंपाउंड्स हैं ये किसके साथ में है? मेटल्स के साथ में रहेगा। ठीक है ना। अब मेटल्स के साथ में यहां देखिए जो केटायन है, केटायन का साइज जितना बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। लेकिन यहाँ पर हमने मेटल सेम लिया तो यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बात पर डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, किसकी, जो एनायन है, ठीक है ना, उससे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। मतलब MgF बॉन्ड, MgCl बॉन्ड या MgBr और MgI, इन सब के बीच में जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनेगा वो दिस वन। तो कहने का मतलब ये है जो मेटल्स के फ्लोराइड्स हैं दे हैव हाईली आयनिक इन नेचर एंड देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने लगता है और उनकी हार्डनेस भी कम होने लगती, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होने लगते हैं। ओके, थैंक यू।